so I learned is, first of all, anybody can tell a story. It was that simple. Actually, what our framework mindset is that how we will tell our story. So from this 2 days session, at least I learned that anybody can tell a story. Different story for different purposes. So there are always a purpose for the stories. And language is not the barrier for storytelling. Language or the what do you say, the words, and how storytelling can help build your businesses. And when questions to be asked to get the good story from anyone, or for in fact from us also, when we ask when to ourselves, we can get good stories. Like how you thought that storytelling should be in a simple format, same way I saw in this 2 days your presentations were simple, not any like what even designing was also not there, but still it was appealing. Secondly, you used in this 2 days, I think, very simple language. None of the word was that was that we didn't understand basically. So thank you for creating this wonderful session basically. Thank you. Thank you for the session, Dhyanish. First thing is, write down the stories. Have 3-4 stories ready with you. Then with the question and answers type which you've shared, write those pointers around and make it simple for other person to understand. Yeah, minus the jargons. That is what you have shared. And jargons may identify that what was a simple way you can explain those jargons. Second, engage the participant with the question by when. To engage in a participation, you ask in a format like when was it done, or what was the problem, or what, like ask with a when, and then make, as I said, you need to build up 3-4 stories with the framework. That is what things I like very much. Thank you. 5 things which I learned from this workshop is to be authentic, to be clear and simple in your communication to clients, very important. Storytelling should not be a long process, 1-2 minutes maximum. A very good thing I learned today: facts tell, stories sell. I think this is very awesome. And 2 book names I learned, which I'll read. And NLP training was also very awesome from Anupama. It was superb. Yeah, thank you. So I would like to thank you. बहुत अच्छा सेशन 2 दिन आपने किया. फर्स्ट डे का तो मैं मिस किया था, लेकिन 2 दिन का एक्सेलेंट सेशन आपने लिया. स्टोरी में हीरो जो है वो क्लाइंट होना चाहिए, कम नहीं होने चाहिए. वो एक आपने बहुत अच्छा बताया. स्टोरी कनेक्ट्स इमोशनली. स्टोरी से इमोशनल कनेक्ट होता है. स्टोरीज में बिजनेस स्टोरीज भी होती है, पर्सनल स्टोरीज भी हो सकती है. ये भी आई लर्न. आई ऑल्सो लर्न वेन ऐड करने से स्टोरी मिलेगी. अपने से भी और किसी से भी स्टोरी अगर निकालनी है तो वेन क्वेश्चन से स्टोरी निकलती है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात मालूम हुआ कि स्टोरी लिखना चाहिए रोज. रोजमर्रा की जिंदगी में रोज हम मिनी स्टोरीज के साथ मतलब हमारा ये होता है, लेकिन हम वो लिख के नहीं रखते, तो हमें जब समय आता है तो स्टोरी याद नहीं आती है. तो छोटी छोटी स्टोरीज रोज लिख के रखेंगे. I decided to write 1 story a day. Thank you. One thing is, keep it simple. That's one of the best thing I have learned. And how to organize your story. There's a pattern that we haven't followed yet. And I've learned about my communication pattern also in my first day class. And how to connect with people using when. So these are the things I think that I have learned, especially from you and Anupama, and so it was great. Yeah, thanks. मतलब पहली बार सुना कि जार्गन क्या होता है, मतलब मुझे पता चला. तो एक हम लोग जब स्टोरी कुछ बोलते हैं, हम लोग कुछ भी वर्ड मतलब अपने हिसाब से बोल देते थे, लेकिन सामने वाले को समझता ही नहीं, समझता वो नहीं मालूम था. हम लोग जो तुमने बोला ना, वो द कर्स ऑफ नॉलेज, दैट आई हैव लर्न. मतलब हमें कभी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो समझेगा ही. हमें इस तरह से मतलब बात सिंपल रखनी चाहिए.
मतलब एक स्टोरी हमें सिंपल रखनी चाहिए, समझा मेरे को कि सिंपल होना चाहिए। और जो बैन के बारे में जो कहा, बैन से हम एक ये है कि हम सामने वाले का बिजनेस भी जान सकते हैं एक स्टोरी के जरिए, मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऐसे बंदे का बिजनेस हो जो हमें समझाना चाह रहा है, हमें नहीं समझेगा, तो हम उससे स्टोरी में बोलने के लिए कह सकते हैं कि ये आपने लास्ट टाइम कब किया था, या कैसे किया था, या किसके साथ किया था। तो उससे मतलब सामने वाले को हम समझ भी सकते हैं इससे, और हम कुछ समझा भी सकते हैं। तो दोनों चीज पावरफुल। आज का या कल का जो सेशन मैंने अटेंड किया तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और थैंक यू सर। तो उसमें मुझे ये पहला तो मालूम पड़ा कि कुछ फ्रेमवर्क रहता है स्टोरी का भी। तो हाउ टू अरेंज द स्टोरी इन द फ्रेमवर्क, मीन्स फ्रेमवर्क में कैसा उसको अरेंज करके बोलना है। तो आपने अभी सिखाया कि ये पहला बोलिए, फिर ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो अच्छा मुझे लगा। और कभी भी सिंपल लैंग्वेज में लोगों को बताना है। हम लोग एज्यूम, सर बोले वैसा ही क्लाइंट को एज्यूम करते कि ये समझ लेंगे, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में उनको बताना है। तो क्लियर अबाउट द सब्जेक्ट थ्रू दी स्टोरी, जो सब्जेक्ट हमें बताना है वो स्टोरी के थ्रू ही उनको क्लियर हो जाता है। जैसे कि स्टोरी हम लोग कोई भी चीज का बताते थे, तो ये थोड़ा हमारे बिजनेस में तो बहुत यूजफुल है। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अच्छा सेशन था। फर्स्ट डे तो हमने मिस किया थोड़ा सा, लेकिन लास्ट डे बहुत अच्छा था। जैसे संपदा ने कहा कि फ्रेमवर्क, मुझे भी पहली बार पता चला कि फ्रेमवर्क कुछ होता है स्टोरी में। तो स्टेप बाय स्टेप बोलना है, क्या स्टेप से फिर पता चला। और वो एक मुझे अच्छा लगा कि क्लाइंट को अगर हम खाली पॉलिसीज बोलेंगे या प्रेजेंटेशन देंगे तो उनको इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन हम उसका अगर कुछ स्टोरी बना के उनको समझाते हैं या स्टोरी से उनको कुछ बताते हैं तो उनको वो याद रहता है। और बहुत सारे क्लाइंट को जो मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ ऐसे स्टोरी, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं भी स्टोरी ही बताती हूँ उनको, कि वो जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका वो 14 पॉइंट में जो बताती हूँ ना। और कभी अभी भी कोई कोई क्लाइंट है उनको एकदम याद है, अगर मैं पूछूंगी ना तो वो अभी भी बता देते, कोई भी पूछेगा तो वो बता देते। थैंक यू। तो अभी मुझे वो क्लिक हुआ कि आपका जो स्टोरी टेलिंग है वो कुछ रिलेटेड है मेरे प्लान से।